अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं आसिफ़ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं। जी हाँ, बांग्लादेश आर्मी के जो कमीशन ऑफिसर होंगे उनको मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं और बांग्लादेश की हुकूमत बांग्लादेश के अंदर अमन व अमान को कायम करना चाहती है। और बांग्लादेश के अंदर जो माफिया बैठा है, जो करप्शन करता है, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है, अब उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और बांग्लादेश आर्मी बांग्लादेश के शहरियों के अमन व अमान और उनकी जानो माल की हिफाजत करेगी। और दूसरी तरफ भारत जो है बांग्लादेश के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना चाहता है, बांग्लादेश को ग्रो करने से रोकना चाहता है, क्योंकि भारत की जो पपेट सरकार थी शेख हसीना, वो यहाँ से ख़त्म हो गई है और शेख हसीना भारत की गोद में जाके बैठ गई हैं। और भारत को किसी सूरत कबूल नहीं है कि बांग्लादेश ग्रो करे, क्योंकि बांग्लादेश की ग्रोथ भारत को कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। यही वजह है कि अब बांग्लादेश की आर्मी को ये मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं। मज़ीद डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর এক দফা আন্দোলনে রূপ নেওয়া ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের সময় নানাভাবে জনসাধারণের পক্ষে কাজ করতে দেখা যায় সেনাবাহিনীকে। বিগত ২ মাস ধরে মাঠে থাকলেও এই প্রথম ২ মাসের জন্য সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই যে ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ারটা, এটা সুবিধাটা ভোগ করবে বাংলার জনগণ। এর ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পাওয়া সেনা কর্মকর্তারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বা গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারবেন। এছাড়া সেনা কর্মকর্তারা ফৌজদারি অপরাধে বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। গেল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরবর্তী ৬০ দিনের জন্য সেনা কর্মকর্তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৯৮ এর বেশ কিছু ধারার অপরাধগুলো বিবেচনায় নিতে পারবেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। আইনের এসব ধারা অনুযায়ী একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের যেসব ক্ষমতা রয়েছে, ধারা ৬৪ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার বা গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়ার এবং হেফাজতে রাখার ক্ষমতা। ধারা ৬৫ অনুযায়ী গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা বা তার উপস্থিতিতে গ্রেপ্তারের নির্দেশনা যার জন্য তিনি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারেন। ধারা ৮৩, ৮৪, ৮৬ অনুযায়ী ওয়ারেন্ট অনুমোদন করার ক্ষমতা বা ওয়ারেন্টের অধীনে গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপসারণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা। ধারা ৯৫ অনুযায়ী নথিপত্র ইত্যাদির জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুসন্ধান এবং আটক করার ক্ষমতা। ধারা ১০০ অনুযায়ী ভুলভাবে বন্দী ব্যক্তিদের হাজির করার জন্য অনুসন্ধান ওয়ারেন্ট জারি করার ক্ষমতা। ধারা ১০৫ অনুযায়ী সরকারি তল্লাশি করার ক্ষমতা। তার উপস্থিতিতে যে কোনো স্থানে অনুসন্ধানের জন্য তিনি সার্চ ওয়ারেন্টের জারি করতে পারেন। ধারা ১০৭ অনুযায়ী শান্তি বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। ধারা ১০৯ অনুযায়ী ভবঘুরে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির ভালো আচরণের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। ধারা ১১০ অনুযায়ী ভালো আচরণের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। ধারা ১২৬ অনুযায়ী জামিনের নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা। ধারা ১২৭ অনুযায়ী বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দানের ক্ষমতা। ধারা ১২৮ অনুযায়ী বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য বেসামরিক শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা। ধারা ১৩০ অনুযায়ী বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা। ধারা ১৩৩ অনুযায়ী স্থানীয় উপদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আদেশ জারি করার ক্ষমতা। ধারা ১৪২ অনুযায়ী জনসাধারণের উপদ্রব্যের ক্ষেত্রে অবিলম্বে ব্যবস্থা হিসাবে আদেশ জারি করার ক্ষমতা। উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়াও যে কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর অধীনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য
সরকার এবং সেই সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারের মধ্যে বেসামরিক শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির পর ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী অপরাধীকে সাজা দিতে পারবেন, তবে কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে 2 বছরের বেশি নয়। সাব্বির হাসান, माछरंगा टेलीविजन। जी, तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश की आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स को स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी गई हैं और बांग्लादेश के अंदर जो अपराध हैं उनको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। बांग्लादेश के शहरियों के अमन मान की हिफाजत की जाएगी, उनके जानो माल की हिफाजत की जाएगी और भारत जो डिस्टेबलाइजेशन बांग्लादेश के अंदर पैदा करना चाहता है, भारत का रास्ता भी रोका जाएगा और बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश को तरक्की देने के लिए, बांग्लादेश के अंदर अमन व मान कायम करने के लिए बांग्लादेश आर्मी को स्पेशल मजिस्ट्रेटरी की पावर जो हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं और बांग्लादेश आर्मी की जो कमीशन ऑफिसर्स होंगे वो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स होंगे। वो किसी का भी वारंट जारी कर सकेंगे और बांग्लादेश के अंदर किसी जगह पे अगर कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है और या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है उसका भी वो वारंट जारी कर सकते हैं। किसी भी जगह को वो सर्च कर सकेंगे और बांग्लादेश के शहरियों को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिफाजत देने वाले हैं। जैसा कि शेख हसीना की सरकार चाहती थी भारत के पीछे लग के कि बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश के शहरियों को आमने सामने कर दिया जाए और बांग्लादेश आर्मी को ऑर्डर्स दिए गए थे कि इनको गोलियां मारी जाएं, लेकिन बांग्लादेश आर्मी ने अपनी अवाम पे गोली चलाने से इनकार किया और शेख हसीना को इतना प्रेशराइज़ किया कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस्तीफ़ा देने के बाद वो अपना जो बाई देश था जहाँ से उनकी डोरें हिलाई जाती भारत, वो भारत की गोद में जाके बैठ गई हैं और पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारत ने आज तक बांग्लादेश को ये बताया था कि पाकिस्तान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। बांग्लादेश को आज तक भारत कंट्रोल करता था, शेख हसीना के थ्रू बांग्लादेश के लोगों पे जुल्म कराता था, सियासी लीडरों पे जुल्म किया जाता था और यहाँ पे अब बांग्लादेश आर्मी को स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं और अब किसी सूरत भी बांग्लादेश के अंदर अपराध करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो माफिया बैठे हुए हैं, करप्शन करते हैं और बांग्लादेश को नुकसान पहुँचाते हैं, उन सब के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ले रही है और आर्मी को यहाँ पे पावर दी गई है और बांग्लादेश के शहरी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका अपना आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है। जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस और फोर्सेस को यूज़ किया गया बांग्लादेश के शहरियों के ख़िलाफ़, उनके लिए बांग्लादेश के लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अब आर्मी को स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पे होना पड़ा है और हुकूमत ने उनको ये रोल दिया। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश आर्मी की मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में और बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।